بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ میں بیساکھیوں کے سہارے بہت آہستہ آہستہ کمرے کی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جبار اب تک مبہوت سا ماں پارا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت ماں پارا کی اور اس کی نظریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی۔ میرے ہمزاد نے اس کا شانہ ہلایا اور وہ جیسے کسی خواب سے چونک اٹھا۔ وہ کمرے سے نکلتے نکلتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں پارا کو پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی بار دیکھ کر تقریباً میری بھی یہی حالت ہوئی تھی جو اس وقت جبار کی تھی۔ ماں پارا واقعی اتنی حسین تھی کہ آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ دونوں ہمزاد ہمیں پھر مسافر خانے میں لے آئے۔ وہ تمام رات میں نے ماں پارا کے حسین تصور میں گزار دی۔ رہ رہ کر اس کا سراپا میری آنکھوں میں گھومتا رہا۔ وہ ایک ایک منظر مجھے یاد آیا جب میں نے اس کی قیامت خیز حسن کو اس عالم میں دیکھا تھا جس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوتا، جہاں حجابات کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، جہاں صرف بے خودی اور سرشاری رہ جاتی ہے۔ کسی ایسے ہی حسن مکمل کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے کہ جس فنکار نے یہ حسن تخلیق کیا ہے، اس نے صدیوں اسے سوچا ہوگا۔ میں اس رات آنے والے رومان انگیز خیالات میں محو تھا اور اسی میں صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی ہمزاد نے کولا ٹولا سٹریٹ میں ایک فلائٹ کا انتظام کر دیا اور ہم منہ مانگی پگڑی دے کر مسافر خانے سے اس فلائٹ میں منتقل ہو گئے۔ وہ پورا دن میں نے کس طرح گزارا یہ میرا ہی جی جانتا ہے۔ میری کیفیت ایک ایسے شخص کی تھی جو دریا کے کنارے پیاسا کھڑا ہو اور اسے یہ اجازت نہ ہو کہ وہ اپنی تشنہ لبی دور کرے۔ ہجر کے طویل اور تھکا دینے والے لمحات کے بعد اب وہ رات آنے والی تھی جو میری امنگوں اور آرزوؤں میں کچھ نئے رنگوں کا اضافہ کر دے گی، جو میرے زخم کا مرہم بنے گی۔ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں، سارے رنج و ملال جیسے اسے آنے والی رات نے ذہن سے محو کر دیے تھے۔ میں نے ان لمحات کی کیفیت شاید پوری طرح بیان نہیں کی۔ اگر میں اپنے محسوسات کو لفظوں میں منتقل کر سکتا، اپنے جذبات کو پیرہن عطا کرنے پر قادر ہوتا، تو شاید لفظوں کے معنی بدلنے پڑتے، مجھے اپنی کیفیت بیان کرنے کے لیے لفظ تلاش کرنے پڑتے، اور شاید پھر بھی لفظ میرا ساتھ نہ دے پاتے۔ مجھے اب صرف اتنا یاد رہ گیا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کیا جتنا میں نے اس رات کا انتظار کیا۔ وہ رات جو ماں پارا کو شکست سے ہمکنار کرے گی۔ میں سفر ہی کے دوران میں ہمزاد سے وہ بھی دریافت کر چکا تھا کہ جب ماں پارا کی قوتیں سلب ہو جائیں گی تو کیا وہ پھر بھی اتنی ہی حسین و دلکش رہے گی۔ ہمزاد نے مجھے بتایا کہ اس کے حسن صرف اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ مدت پوری نہیں ہو جاتی جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے۔ یہ میرے علم میں تھا کہ ابھی اس مدت کے پورا ہونے میں تقریباً 7-8 مہینے تھے۔ جس وقت اس نے اپنا عمل شروع کیا تھا میں میرٹھ ہی میں تھا، اور میں نے ہمزاد سے اس پر کئی بار حملے بھی کروائے تھے، مگر میں اس کے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال سکا تھا۔ رات ہوتے ہی میں نے ہمزاد کو طلب کیا اور بے تابی سے بولا، اسے لے آؤ، اس قرار جان کو لے آؤ۔ میں اب بغیر اس کے ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ میری موجودگی میں تم ایسا نہیں کر سکتے، اس پر میرا حق ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں کل رات ہی اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ آواز جبار کی تھی۔
जिसके वजूद को मैंने फरामोश ही कर दिया था। जब्बार, होश में आओ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम शेख करामत से हम कलाम हो? मैं चीखा। हाँ, मुझे इल्म है, मगर तुम्हारा और मेरा मामला मुख्तलिफ है। तुम सिर्फ एक अबुल हवस हो और मैं इससे इश्क करता हूँ। तुम मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। बकवास मत करो वरना। मैं इतनी ज़ोर से चीखा कि मुझे खांसी आ गई। वरना क्या? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो कुव्वत तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। जब्बार ने तैश में आके कहा, क्या तुम्हें अपने लफ्ज़ के मैनी मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम शेख करामत से टकराने की कोशिश कर रहे हो। मैंने बामुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा है मैं बाखूबी इसके मैनी जानता हूँ। मैं हरगिज़ मापारा को तुम्हारी बैंड नहीं चढ़ने दूंगा। जब्बार ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, एहसान फरामोश। मैं आखिरी मर्तबा पूरी कुव्वत से चीखा और फिर एकदम अपने हमजाद से मुखातब हो गया ताकि इसे जब्बार की धज्जियां उड़ा देने का हुक्म दूं। लेकिन इससे पहले कि मैं हमजाद को कोई ऐसा हुक्म दे सकता, मुझे इसकी सर्द आवाज़ सुनाई दी जिसने मेरे तन बदन में आग लगा दी। जब्बार सही कहता है, इसे वाकई मापारा से इश्क है। आपको इसके हक में दस्त बरदार हो जाना चाहिए। मैंने इस सिलसिले में तुमसे कोई मशवरा तलब नहीं किया। मैंने इंतहाई ज़ब्त से काम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस एहसान फरामोश की धज्जियाँ बिखेर दो। आप गलती पर हैं। मुझे हमजाद की आवाज़ में हुक्म अदूली का अंसर नज़र आया। ये पहला मौका था कि हमजाद भी सरकशी पर आमादा नज़र आ रहा था। इससे पहले इसने कभी मेरे किसी हुक्म को मानने से इज्तनाब नहीं किया था। मैं देख रहा था कि मेरी बेबसी पर जब्बार मुस्कुरा रहा था। मेरे लिए अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। मैं हमजाद पर बरस पड़ा। मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ करो। तुम्हें यह हक नहीं पहुँचता कि गलत और सही का फैसला करो, मगर मैं मजबूर हूँ। हमजाद ने जवाब दिया, तुम्हें किसने मजबूर किया है? मैंने सवाल किया। मेरी सदाकत ने। हमजाद बोला, बकवास मत करो। मुझे अब हमजाद पर भी शदीद गुस्सा आ गया था। इस वक्त मुझे जब्बार की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे मुखातिब था, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे और तुम्हारे रास्ते अब मुख्तलिफ हो चुके हैं। मैं इसी वक्त ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मापारा को अपनी हवस की आग में ना जला पाओगे। तुम मापारा को अपनी हवस की आग में ना जला पाओगे। वो मेरी है और मेरी रहेगी, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले पर मेरा जज्बा सादिक है। मैं पत्थर सा बना इसकी बातें सुनता रहा। सूटकेस उठाकर फ्लैट से जाते हुए देखता रहा, जैसे ये सब कुछ हकीकत ना हो, कोई निहायत तकलीफ दे ख्वाब हो। मैंने खुद को इतना बेबस और लाचार कभी महसूस नहीं किया था। जब्बार चला गया तो मैं एकदम चीख पड़ा, अब तुम दफा हो जाओ। हमजाद जो अब तक मेरे सामने मुअद्दब खड़ा था, मेरा ये फिक्रा सुनते ही गायब हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। हमजाद ही मेरे लिए सब कुछ था और आज इसने पहली मर्तबा मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। मेरे लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात और क्या हो सकती थी। अचानक मंजिल मेरे करीब आकर बहुत दूर हो गई थी, इतनी दूर जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सब कुछ बस अचानक और देखते ही देखते हो गया था। मुझे अपनी रूह झुलसती हुई महसूस हो रही थी। बार बार मेरी आंखों में मापारा का चेहरा घूमता और तिलमिलाकर रह जाता। मैं काफ़ी देर तक कमरे में बेचैनी से टहलते टहलते थक गया था। मेरे आसाब टूटने लगे थे। आखिर मैं थक कर बिस्तर पर ढेर हो गया। न जाने कब तक मैं अंदर ही अंदर सुलगता रहा।
अपनी मजबूरी और बेबसी पर न जाने कब तक मैं कुल बुलाता रहा और न जाने कब मेरी आंख लग गई। किसी ने मेरा बाजू पकड़कर हिलाया तो मैंने आंखें खोली। मेरी नज़र हमजाद पर पड़ी और मैंने इसके तरफ से मुंह फेर दिया। इंतहाई गुस्से और नफरत से कहा, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, फिर तुम क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आपके हुक्म पर ऐसा भी कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे जब्बार के बारे में आपका हुक्म मतलूब है। हमजाद ने कहा, मुझे अब ना किसी जब्बार से दिलचस्पी है और ना इसके बारे में किसी बात से। मैंने जवाब दिया, क्या आप इसके एहसान फरामोशी भूल गए हैं? नहीं, मुझे सब कुछ याद है, इसकी एहसान फरामोशी भी और तुम्हारी हुक्म अदूली भी। मेरे लहजे की चुभन को हमजाद ने भी महसूस कर लिया था, लेकिन मैं इसकी परवाह किए बगैर कहता गया, क्या अब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा निश्तर बाकी है जो तुमने मेरी रूह में न चबोया हो? बोलो, जवाब दो। सर झुकाए क्यों खड़े हो? क्या अब भी मेरी बेइज्जती में कोई कसर बाकी रह गई है जिसे तुम पूरा करने आए हो? मैं सख्त नादम हूँ, मगर मसलतन वक्त का तकाजा वही था जो मैंने किया। हमजाद ने जवाब दिया, तो मेरी बेइज्जती में मसलत थी। मेरा पारा चढ़ने लगा। आप एक मर्तबा पूरी बात सुन लें, फिर इसके बाद आपको इख्तियार होगा कि जो चाहे फैसला करें। मैं हमजाद की बात सुनकर खामोश रहा। मैंने इसकी बात सुनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, लेकिन ये जानने के लिए ज़रूर बेताब था कि वो क्या मसलहत थी जिसने हमजाद को मेरा हुक्म मानने से रोका। हमजाद ने मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि मैं इसकी बात सुनने का मुंतज़िर हूँ। इसके बाद वो मुझे हालात से आगाह करने लगा। आपको गालबन याद होगा, जिस रात हमने माँ पारा पर हमला किया और इस पर काबू पा लिया था, तो वहाँ से लौटते वक्त जब्बार और माँ पारा की नज़रें एक दूसरे से मिली हुई थीं और जब्बार मबहूत सा खड़ा हुआ था। फिर जब मैंने इसका शाना हिलाया तो वो जैसे किसी ख्वाब से चौंक उठा था। वो कमरे से निकलते निकलते भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। वो सब कुछ बेमैनी नहीं था। माँ पारा अच्छी तरह जान चुकी थी कि अब वो आपसे मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुकी है, लेकिन इसने बाजी हारते हारते फिर एक चाल चल दी। इसे अगर कोई जिद थी तो सिर्फ ये कि वो आपके सामने ना झुके। इसे इल्म था कि इस पर दो हमजादों की मदद से काबू पाया गया है। इसकी कुव्वतों को तो खैर अब मसलूब होने से नहीं बचाया जा सकता था, मगर ये ज़रूर मुमकिन था कि वो जब्बार को अपने दामे हुस्न में गिरफ्तार करके आपसे सरकशी पर आमादा कर दे। जब्बार इसके हुस्न से इस हद तक मुतासर हुआ कि वो आपसे टकराने तक पर आमादा हो गया, और यही माँ पारा का मकसद था। मैं नहीं कह सकता कि अगर मैं इस वक्त आपका हुक्म मान लेता और जब्बार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो क्या सूरत हाल पेश आती, लेकिन मैं इस बात से ज़रूर आगाह था कि ऐसी सूरत में जब्बार अपने हमजाद की मदद ज़रूर हासिल करता, और फिर क्या होता ये कुछ नहीं कहा जा सकता था। हाँ, ये मुमकिन था कि माँ पारा अपने मकसद में कामयाब हो जाती। हो सकता था कि मैं और जब्बार का हमजाद दोनों आपस में टकरा कर ख़त्म हो जाते, और न सिर्फ जब्बार अपने हमजाद से महरूम हो जाता, बल्कि आप भी मेरी गैर मौजूदगी में बेदस्तोपा रह जाते, और ये नताइज बड़े भयानक होते। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर दो हमजाद एक जगह मौजूद हों तो एक दूसरे की गुफ्तगू सुनने के अहल हो सकते हैं। जब्बार के हमजाद की मौजूदगी में मैं आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह नहीं कर सकता था, और ऐसी सूरत में तो हरगिज़ नहीं। जब जब्बार सरकशी पर आमादा था, मैंने बहुत कम अरसे में
तमाम हालात पर गौर किया और फैसला कर लिया कि इस वक्त जब्बार से टकराने का किसी भी सूरत में हमारे हक में नहीं है। मैं वाकिफ था कि आप मेरी हुकूमत-उली पर सख्त बरहम होंगे, लेकिन मैं आपकी वक्ती बरहमी को बर्दाश्त करने पर मजबूर था। जब्बार के हमजाद ने जब इससे ये बताया कि मैंने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है तो वो मुत्तमिन हो गया। फिर इसने फैसला किया कि इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और वो अपने हमजाद के साथ यहाँ से चला गया। मेरा मकसद दरअसल यही था कि जब्बार पर यह जाहिर कर दूं कि मैं पीछे हट गया हूँ ताकि वो आगे बढ़े, और इसके आगे बढ़ने का मतलब सिवाय इसके तबाही के और कुछ नहीं था। इतने दिन आपके साथ रहकर जब्बार को एहसास हो चुका था कि वो कितनी बड़ी पुरसरार कुव्वत का मालिक है और वो इससे क्या क्या काम ले सकता है। यहाँ से निकलकर जब्बार ने अपने हमजाद को हुक्म दिया कि इसे किसी महफूज जगह पर पहुँचा दिया जाए। इसके हमजाद ने इसे पार्क सर्कस के इलाके में एक गैर आबाद मकान में पहुँचा दिया। आप शायद ये भी नहीं भूले होंगे कि जब्बार कई रातों का जागा हुआ था। इसे नींद की सख्त ज़रूरत थी, मगर जाहिर है इसका हमजाद इसे क्यों सोने देता। इसके सोने के लिए ज़रूरी था कि इसका हमजाद इसके पास मौजूद ना हो, और इसकी सिर्फ एक ही सूरत थी। मेरी तवक्को के मुताबिक जब्बार ने अपने हमजाद को हुक्म दिया कि वो मापारा को उठा लाए। मैं वाकिफ था कि वो इस सूरत हाल में सवाए मापारा के किसी और की ख्वाहिश नहीं करेगा, क्योंकि मापारा ही इसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। मापारा इसके पास पहुंची तो इसने जब्बार को लाख समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करना इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन मापारा की तमाम पुरसरार कुव्वतें सलब हो चुकी थीं। अब वो कतई एक मामूली और लाचार लड़की थी जो अपनी मुदाफ़त में कुछ भी नहीं कर पाती। जब्बार को रोकने का मकसद सिर्फ ये था कि इसकी दानिश में ये सब कुछ जब्बार के हक में बेहतर नहीं था। इस तरह जब्बार पर बेखबरी में आपकी तरफ से हमला किया जाना भी मुमकिन था, और जब्बार की शिकस्त का ये मतलब होता कि इसके आखिरी चाल भी नाकाम हो जाती। लेकिन जब्बार इस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसे तो मापारा की कुर्बत ने पागल बना दिया। इसमें कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रही थी। मापारा ने मौका महल की नज़ाकत को महसूस करते हुए बड़ी मिन्नतों समाजतों और इश्क के वास्ते देकर जब्बार को बामुश्किल इस बात पर आमादा कर लिया कि फ़िलहाल वो अपने इरादे से बाज आ जाए। इसने जब्बार को यकीन दिलाया था कि मापारा अब सिर्फ इसी की है और वो इससे शादी करने के बाद अपनी बकाया ज़िंदगी इसके कदमों में गुजार देना चाहती है। ये कहकर मापारा कोई बहाना करके इसके पहलू से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। जब्बार काफ़ी देर इसका मुंतज़िर रहने के बाद उठकर और बराबर वाले कमरे में मापारा को जाकर देखा, जहां वो अपना लिबास दुरुस्त करने गई थी, लेकिन कमरा खाली था। जब्बार ने पूरा मकान खंगाल डाला, मगर मापारा का कहीं पता नहीं था। मापारा ने जब्बार से जो कुछ कहा था इसमें कतई हकीकत नहीं थी। इसे जब्बार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन हालात ने इस वक्त मापारा को इतना बौखला दिया था कि इसने सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं किया। इसे खतरा था कि अगर वो सुबह तक जब्बार के साथ रही तो जब्बार किसी तरह भी अपने जज्बात को काबू में न रख सकेगा, जबकि मापारा कतई ये नहीं चाहती थी कि जब्बार अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मापारा मकान से निकलकर पैदल ही एक तरफ रवाना हो गई। इस वक्त किसी सवारी के मिलने का इम्कान भी नहीं था। मापारा इंतहाई दिल बरगिस्ता थी और अपने ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी कि गश्त पर निकलने वाले पुलिस के एक दस्ते ने इसे हिरासत में ले लिया। वो इसे कोई आवारा बदकार लड़की समझे थे। मापारा अब पार्क सर्कस थाने के हवालात में कैद है और जब्बार बेखबर सोया पड़ा है। इसका हमजाद इसके पास नहीं,
इसे इस हालत में ख़त्म भी किया जा सकता है और कई बड़ी मुसीबत में फंसाया जा सकता है। अब आपका जो हुक्म हो इस पर अमल किया जाए, क्योंकि अभी सुबह होने में 3 घंटे बाकी हैं और ये 3 घंटे हमारे लिए बड़े अहम हैं। मैं समझता हूँ कि अब तमाम हालात जानने के बाद आपकी खफगी दूर हो चुकी होगी। हमजात ने अपनी बात ख़त्म करते हुए मेरी तरफ रहम तलब नज़रों से देखा। हमजात ने मुझे जो कुछ बताया था इससे मैं बहुत मुतासर हुआ। वक्ती तौर पर मुझे इसकी तरफ से जो बदगुमानी हुई थी वो मेरे दिल से निकल गई थी। इसमें कोई कलाम नहीं कि तुम्हारे अमल से मुझे जो रूहानी अजियत पहुंची वो अपनी जगह है, लेकिन तुमने मुझे जिन हालात से आगाह किया है